أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف کی حاضری کے آداب اور حاضری کی فضیلت عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ اور اذا جب جاء آئے، جا کا معنی آپ کے پاس آئے، الذین جاءک الذین وہ لوگ جو یؤمنون بآیاتنا ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، فقل سلام علیکم پس ان کو سلام کہیے۔ پھر آگے یہ خوشخبری بھی سنا دیجئے، یہ بھی ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا، انہ اگر ان میں سے کوئی، منکم تم میں سے اگر کوئی، سو کے معنی گناہ، برائی، غلطی کوئی کر لے، بجہالتن اپنی جہالت سے، ثم تابا پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے، وہ اصلح فانہ غفور الرحیم اور اپنی اصلاح کر لے اس کے بعد، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب کے دربار میں آنے والے کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب پاک کے در پر آنے والوں کے لیے کہ آپ اے حبیب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ان کو سلام کہیے اور یہ خوشخبری بھی سنا دیجئے کہ آپ کے رب نے اپنے نفس پر یعنی اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر تم میں سے آنے والوں میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب کے در پر آتا ہے تو اس کو سلام کہنے کا حکم ہے۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آنے والوں کے لیے کہ اگر ان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو پھر وہ توبہ کرے اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا، بخشنے والا پائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ گناہ ہو جائے بجہالتن کے الفاظ ہیں، اگر جہالت سے، غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو غلطی سے یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قصدن گناہ کرے، قصدن نافرمانی کرے، بلکہ غلطی سے سوءم بجہالت، سوءن مانے گناہ کر دے، بجہالت اپنی جہالت سے کر دے، تو یہ معلوم ہوا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قصدن کوئی گناہ کرے، کوئی غلطی کرے، بلکہ جہالت سے ہو جاتا ہے۔ جہالت کے معنی نادانی کے بھی ہیں اور علم سے ناواقفیت کے بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اے حبیب آپ کے در پہ آنے والوں کی یہ شان ہے کہ آپ ان کو سلام کہیے، اور یہ بھی خوشخبری سنا دیجئے کہ آپ کے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور ان میں سے کوئی گناہ بھی ہو جائے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آگے
आयत शरीफा का तर्जुमा यह है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अंफुसहुम, वलो अन्नहुम, अगर उनमें से कोई इज़्ज़लमू, अपने आप पर ज़लमू अंफुसहुम, अंफुसहुम मैंने अपने आप पर, तुम में से अगर कोई अपने आप पर जुल्म कर ले तो उनको चाहिए कि जाऊ का, वो आपके पास आना, आकर फस्तगफिरुल्लाह, आकर वहां पर अल्लाह से मगफरत तलब करे, वस्तगफर लहुमुर रसूलु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मगफरत तलब करेंगे, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम, लवजदा माने जरूर जरूर अल्लाह ताला को पाएंगे बड़ा तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम करने वाला। तो यह तर्जुमा यह है कि अगर कोई जुल्म गुनाह अपनी जान पर जुल्म करे, जुल्म के माने गुनाह करे, अगर कोई किसी से कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको चाहिए कि आपके दर पर आए, आपके दर पर आकर अल्लाह से माफी चाहे, फिर आप भी उनके लिए माफी मगफरत की दुआ करें तो अल्लाह ताला को बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला पाएंगे। तो इस आयत शरीफा की शान नुज़ूल ये है कि जंगे तबूक के मौके पर 3 सहाबा ऐसे थे जो जिहाद में शिरकत से रह गए थे। बहुत लंबी तफसील है उनकी, क्या वजह रह गए थे, क्या हुआ था। खैर, उनमें से एक सहाबी का नाम अबी लुबाबा था। उनको अपनी गलती का इतना एहसास हुआ कि वो एक रास्ते में से एक साहब को बोले कि रस्सी एक खरीद के लेके चले और मदीना शरीफ में जाकर एक पिल्लर से अपने आप को बंधवा लिए। वो पिल्लर का नाम उस्तवाना अबी लुबाबा है। रोज़े शरीफ, मवाज़िन शरीफ से लाए इनसे कुछ पिल्लर्स हैं खास, जिनके कुछ खास नाम हैं। एक जो पहला पिल्लर है उसका नाम उस्तवाना आयशा सिद्दीक़ा है। उस्तवाना माने उस पिल्लर को अरबी में उस्तवाना कहते हैं। बीबी आयशा सिद्दीक़ा का उस्तवाना ने उनका, तो उनका नाम इस वास्ते मुकर्रर हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में ये फरमाए थे कि मेरी मस्जिद में एक जगह ऐसी है जो सबसे ज्यादा अफजल है पूरी मस्जिद में। अगर अगर लोगों को मालूम हो जाए कि ये जगह है तो फिर लोगों को वहां पर नमाज पढ़ने के लिए कुरा डालना पड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बीबी साहिबा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो जगह बता दिए। जब जगह बता दिए तो खैर वहां तो नमाज पढ़ने वालों का हुजूम रहता है, मगर वहां पर एक पिलर बना दिया गया निशानी के लिए और उस पर उस्तवाना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लिखा हुआ है। और उसके बाद एक पिलर है जिसका नाम उस्तवाना अबी लुबाबा है, जिसका भी मैं जिक्र करें। अबी लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये एक बड़े मशहूर सहाबी हैं। उनको इतना गम हुआ अपने इस जंग में शरीक नहीं होने का कि वो एक सहाबी से अपने आप को बंधवा लिए सर से पांव तक खड़े रहकर, और ये बोल दिए कि जब तक अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा जब तक मैं अपने आप को नहीं खुलवाऊंगा। तो ये तरीका था उनका कि हर नमाज के वक्त अपने आप को खुलवाते थे और वुजू करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते, फिर फौरी बनवा लेते। ना खाना, ना पीना, ना बैठना, ना घर को जाने का तो सवाल ही नहीं। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को सजा दे ली। जब चंद दिन गुजरे तो साहबा ने अर्ज किया, दूसरे साहबा ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अबी लुबाबा के लिए दुआ फरमाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब इरशाद फरमाया, अगर वो मेरे पास आते तो मैं अल्लाह से उनके लिए सिफारिश करता। अब वो रास्त अपने अल्लाह की तरफ रुजू हो गए, अल्लाह का और उनका मामला है, अब मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलता। तो इस तरीके से और चंद दिन गुजरने के बाद ये वही आई उनके लिए, और इस ये वही नमाज फजर के थोड़ा पहले आई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए बाहर निकल रहे थे, वही आई। जो साहबा सामने मौजूद थे उन्होंने जब ये सुना तो भाग के बोले अबी लुबाबा को खुशखबरी सुनाई और खोलने गए। हजरत अबी लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने किसी से ने कोई नहीं खोलना, मेरे को मैं नियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अपने आप को खुलवाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खोले और उनके माफी की मुबारकबादी दिए। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई कि अगर तुम में से अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए तो उनको चाहिए था वो आपके पास आना।
यानी रास्त जो मुतवज्जो हो तो अल्लाह ताला रास्त मुतवज्जो होने को पसंद नहीं फरमाए। कुरान में आयत नाजिल हो गई, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर उनमें से किसी से कोई गलती हो जाए, तुम में से किसी से, तो तुम कोई गुनाह हो जाए तो तुमको चाहिए था कि साफ अल्फाज है जाऊका, वो आपके पास आना चाहिए था। वस्तगफिरुल्लाह, और आकर मग़फ़िरत, फस्तगफिरुल्लाह, आकर आपसे अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना था। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसी आयत में है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अलबत्ता वो जरूर अल्लाह ताला को बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाते। तो इस आयत शरीफा से ये भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना जायज है, लेना चाहिए, और आपकी शिफात भी कबूल होती है, कबूलियत दुआ का जरिया है। ये इस कुरान की आयत शरीफा से ये बात साबित हुई। उसके बाद अब जो रोज़े शरीफ पर आना है, तब उससे एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि वो तो जिंदगी की बात थी, अब तो आप जाहिरी पर्दा फरमा चुके हैं, तो भी आप बज़ाहिर पर्दा हैं, मगर आप अपने मकाम पर ऐसे ही मौजूद हैं। कई अहादीस साबित है जैसा कि आप अपनी जिंदगी में मौजूद थे, वैसा हमारी आंखों से पर्दा है। और अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मैं अपने हर उम्मती के चेहरे को देखता हूँ, सारे एक एक उम्मती को मैं पहचानता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मेरे विसाल के बाद जिसने मेरी खबर की जियारत की, उसके लिए मेरी शिफात वाजिब हो गई। तो शिफात का वाजिब होना भी आपके पास हाजिर होने से साबित है, आपके पास, आपके लिए। तो उसके लिए अब ये दूर रहने वाले क्या करें? मसल बात ये है कि जो हाजिर हो जाएंगे, आज भी जो हाजिर हो जाएंगे रोज़ा शरीफ पर, तो गोया हदीस शरीफ में है, गोया उसने जिंदगी से मुझसे मुलाकात की, जिंदगी में मुझको सलाम किया, जैसा कि मैं मौजूद, जैसा कि हकीकत में आप मौजूद हैं। तो उसके बाद अब दूर रहने वाले क्या करना है? तो उनके लिए एक बात ये है कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से भी सुनते हैं, यहाँ से भी पुकारने वाले को आप सुनते हैं। जैसा कि एक वाकया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में, कुरान की आयत है, सूरह नमल की आयत का तर्जुमा सुना रही मैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर निकलता था, उनका लश्कर निकला और 300 मील के फासले पर था। वहां पर चूंटियों का एक जत्था था। तो एक चूंटी अपनी तमाम साथी चूंटियों को ये कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में चले जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में वो उन्हें तुम्हें कुचल ना दे। तो एक चूंटी सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की, उसने 300 मील से लश्कर के आने की को सुन लिया और अपने साथियों से कहा। तो क्या हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुन सकते? एक उम्मती दुनिया के किसी हिस्से में से पुकारो, आका जरूर समात फरमाते हैं। और इसका और एक सबूत ये है, जो फजाल आमाल की में ये हदीस शरीफ है कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो भी बंदा मेरा जिक्र कसरत से करता है, और कसरत से जिक्र करते करते मेरा बंदा मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। ये हदीस कुदसी के अल्फाज हैं। तो फिर क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा किसी ने जिक्र किया है अल्लाह का? क्या हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई किसी को मकाम कुर्ब हासिल है अल्लाह का? हो नहीं सकता। तो फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर हैं, वहां से पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में जहां भी आपके उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई उम्मती पुकारते हैं तो सुनते हैं, सलाम करते हैं आपको तवज्जो के साथ, तो आप सलाम का जवाब देते हैं। खुद अतहियात के अल्फाज है ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अय्युहा के माने मुखातिबत का सेगा है, मुखातिब करके, या के बदल, जैसा या रसूल या नबी के बदल जब
फायदा ये है अरबी ग्रामर का कि या के बाद जो इसम आता है वो इसम अगर अलिफ लाम वाला हो, मुअर्रफ बिल्लाह मुअन्नबी है, तो ये अलिफ लाम वाला इसम है, तो इसके लिए या के बदल अय्युहा लगाते हैं। अय्युहा और या के दोनों के मायने एक ही है। ऐ नबी अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह, तो ऐ किसको मुखातिब करते हैं? जो हाजिर हो उसके लिए इस्तेमाल करने का सेगा है ये, गायब के लिए इस्तेमाल नहीं करते या का लफ्ज। तो इससे साबित हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और अपने मकाम से पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे से बात करने वाले की, आपको पुकारने वाले की सुनते हैं। हाँ, ये तफसील है दुरूद शरीफ की फजाइल में कि जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है वो दुरूद और सलाम पढ़ता है, फरिश्ते मुकर्रर मुझ पर पहुंचाते हैं, और जो खुलूस से पढ़ता है उसका मैं खुद सुनता हूँ, सलाम करने वाले के सलाम का मैं जवाब देता हूँ, ये फरमाते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हाजिर होने के होकर सलाम करने वाले का क्या मकाम है, क्या नसीब है। अल्लाह ने ये भी मौका इस उम्मत को अता फरमाया कि अपने आका के दरबार में हाजिर होकर सलाम कर अर्ज कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला जो हाजिर होते हैं और सलाम अर्ज करते हैं तो उनके भी सलाम को हमारे आका सुनते हैं। और यहाँ तक लिखा है कि कोई शख्स अगर अपने घर से निकले मदीना शरीफ के इरादे से, तो उस वक्त से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस इंसान पर, उसके कल्ब पर रहती है कि उसके दिल में क्या ख्यालात है, कितनी मोहब्बत लेकर आ रहा है, कितनी अदब से आ रहा है, क्या नीयत लेकर आ रहा है आने वाला। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलने के जब से हम सबके दिलों पर हुजूर की नजर रहती है, हुजूर की तवज्जो रहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता है कि मेरा गुलाम आ रहा है। तो इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होने की बहुत बड़ी फजीलत है। एक वाक़या बाद विसाल का भी है कि एक आराबी बाद विसाल शरीफ आपके मज़ार शरीफ पर आया और मिट्टी उठाकर अपने सर पर डाल ली वहां की, और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, नहीं मालूम उनसे क्या गुनाह हो गया था, और मैं आपके हुजूर पर अल्लाह से अपने गुनाह की बख्शिश चाहने हाजिर हुआ हूँ, तो मेरे रब से मेरे गुनाह के लिए आप शिफात करिए, फरमाइए। तो इस पर लिखा है कि खबरे शरीफ से आवाज आई, जा तेरी बख्शिश कर दी गई। तो इस वाक़े से भी बहुत से मसाइल मालूम होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाना और आपकी शिफात का भी सबूत है और वसीला बनाने का भी सबूत है। तो लिहाजा विसाल शरीफ के बाद भी आज भी हम दुनिया के जिस हिस्से में हो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मुखातिब कर पूरी खुसूस कर ये भी लिखा है कि जुमे के दिन का दुरूद और सलाम मैं खुद सुनता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने शरीफ को के आपके शहर को जाने वाले के लिए सिफात और बख्शिश का वादा है। फिर दूसरा ये फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने सिर्फ मेरी जियारत का इरादा करके अपने घर से निकला वो क़यामत के दिन मेरे पड़ोस में रहेगा। और फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी जियारत न की उससे मुझ पर जुल्म किया। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने मेरे पर्दा फरमाने के बाद मेरे खबर की जियारत की, मेरे मज़ार की जियारत की, तो गोया उसने मेरी जिंदगी में मुझसे मुलाकात की। कितनी बड़ी खुशखबरी है, गोया जिंदगी में मुलाकात की, मैं ऐसा ही मौजूद हूँ। आका हमको देख रहे हैं, हम नहीं देख सकते, हमारी आंखों में पर्दा है, आंखों पर पर्दा है। और हाजिरी के आदाब में ये भी लिखा है कि जिस वक्त जा रहे हों और रास्ते में बस में से किसी सवारी में से भी अगर गुंबद खजरा पर नजर पड़ जाए तो अदब का तकाजा यह है कि जहां बैठे हैं वहीं पर खड़े हो जाइए और सलातो सलाम कसरत से अर्ज करते रहिए, कसरत से सलातो सलाम अर्ज करते रहिए। जिस वक्त रोज़े शरीफ या मस्जिद शरीफ करीब आ जाए तो अपनी सवारी से उतर जाइए। सवारी से उतर कर जहाँ भी फिर वक्त ठिकाना रहता है चंद दिन का, वहां पर अपना सामान वगैरह उतार कर, बाज़ उलमा ने लिखा है कि गुस्ल करिए और नए और साफ
सफेद कपड़े पहनकर, और मर्दों के लिए हुक्म है कि खुशबू लगाकर, औरतों के लिए हुक्म नहीं है खुशबू लगाने का। तो लगाकर बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, जितना अदब हम कर सकते हैं उतने अदब के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम से मस्जिद शरीफ की तरफ चलते हुए जाइए। ये यहाँ पर पलकों का झपकना भी बड़ी बेअदबी है। एक शेर है जैसा कि ले सांस भी आहिस्ता, ये दरबार नबी है, पलकों का झपकना भी यहाँ बेअदबी है। जितना अदब कर सके करते हुए मस्जिद शरीफ की तरफ कदम बढ़ाइए और दरवाजे के पास चले जाइए। और उससे पहले कुछ खैरात करना जरूरी है, क्योंकि कुरान में इसका हुक्म था, एक हुक्म आया था, उस पर सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमल किया, उसके बाद वो हुक्म मनसूख हो गया। हुक्म यह था कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहता है तो उसको चाहे कि कुछ खैरात कर कर आपसे बात करे। ये हुक्म था कुरान का, मगर अब हालात के हिसाब से बस अल्लाह की मसलहत अल्लाह ताला ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया। मगर उलमाए किराम लिखते हैं कि अभी भी हर जायर को, हर जियारत करने वाले को चाहिए कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद शरीफ के में जाने से पहले कुछ खैरात करिए। खैरात करके दरवाजे पे चले जाइए, जो दरवाजे से आप जा सकते हैं। उस दरवाजे के पास जाकर अदब लिखा है कि 1 मिनट ठहर जाइए और दिल से मुतवज्जे हो जाइए सरकार की तरफ। मतलब ये है कि अंदर आने की इजाजत तलब कर रहे हैं, इस अंदाज से दरवाजे पर ठहर जाइए। थोड़ी देर दरवाजे पर ठहर कर फिर सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहकर फिर मस्जिद में दाखिले की दुआ, जो दुआ है वो दुआ पढ़ कर उसके बाद में बहुत सी आहिस्ता अंदर जाइए जहां तक जा सकते हैं। ये नहीं कि बाद लोग जाते ही रकात बन लेते, वैसा नहीं है। अंदर सीधा सीधा नीचे मुंडी करके जहां तक जा सकते हैं, सीधा जगह खाली वहां तक जाइए। जाके सबसे पहले 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म है। तहियतुल मस्जिद तो यहाँ की मस्जिदों में भी जब जाते हैं 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ने की फजीलत है, वो तो आका का दरबार है। किसी से बात किए बगैर, अपने साथ कोई आए हैं तो उनके साथियों से भी बात किए बगैर तहियतुल मस्जिद पढ़ना है। तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद 2 रकात शुक्राना पढ़िए और फिर खड़े होकर सलातो सलाम अर्ज करिए। उसके बाद में जहां तक हो सके लोगों को धक्का ऐसा जाना है, दरवाजे में से भी भीड़ तो रहती है, किसी को धक्का नहीं लगना है, किसी को ढकलना नहीं है, और किसी को अपने से कमतर, सबसे अहम बात का ये ख्याल रखना है कि किसी को हमसे कमतर नहीं समझना है। सबसे अपने आप को सबसे ज्यादा कमतर, सबसे ज्यादा गुनाहगार समझते हुए आका के दरबार में हाजिर होना है। और ना मस्जिद शरीफ के दरो दीवार को नहीं देखना है, ना छत को, ना वहां की जीनत को, सिर्फ नीचे मुंडी अदब के साथ रहना है। और लोगों को भी नहीं देखना है, लोगों से किससे बात भी नहीं करना है। कोई बहुत अहम जरूरत है तो मुख्तसर बात कर सकते हैं, मगर जहां तक हो सके खामोशी के साथ। और जिस वक्त अब औरतों के लिए तो हर वक्त मौका नहीं मिलता हाजिरी का, तो ये उलमाए किराम ने लिखा है मत देखिए बोल के, फिर भी हमारे आका के मकाम को अगर हम वहाँ की रौनक, वहाँ का शान देखना है तो देख ले सकते हैं, मगर किताबों में उलमाए किराम ने मना किया है किसको भी मन। और ये खुसूसियत से लिखा है कि फोन बंद रखिए, फोटोज मत लीजिए। बहुत से लोग मस्जिद शरीफ के अंदर जाकर भी फोटोज लेते हैं। अल्लाह हिदायत दे कि उस मकाम पर तवज्जो हुजूर की तरफ से हटकर ये फोटो लेने की तरफ तवज्जो हो जाती है। तो फोटोज मत लीजिए और फोन को साथ तो रखिए, मगर फोन बंद रखिए। जब तक मस्जिद शरीफ में रहेंगे किसी से बात नहीं करना है, किसी का फोन आया तो भी नहीं देखना है, बंद रखना है फोन को। और दूसरी कोई बात भी किसी से नहीं करना है। जिस वक्त ये तो औरतों को तो हर वक्त मौका नहीं मिलता मवाद शरीफ में जाने का, मर्दों के लिए तो हर वक्त रहता है।
مگر عورتوں کے لیے جو وقت مقرر ہے حاضری کا، مواد شریف میں حاضر ہونے کے لیے عورتوں کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے اس وقت میں بالکل، اور وہاں پر ایک گیٹ رہتی ہے جس سے جس گیٹ سے وہاں مواد شریف کے پاس جا سکتے ہیں، اس گیٹ کے پاس بہت سی خواتین کھڑی رہتی ہیں. ہم کو بھی اللہ موقع دے تو کھڑے رہنا چاہیے. اس کے جس وقت گیٹ کھلتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ ابھی تو گیٹ کھلیا ہم اطمینان سے جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد گیٹ بند ہو جاتی. اگر آپ ذرا بھی غفلت کریں تو گیٹ اس لیے بند کر دیتے کہ اندر کا جو جگہ ہے مواد شریف کے پاس چھوٹی جگہ ہے، زیادہ لوگ وہاں پر چلے جائیں گے تو پھر لوگوں کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے وہاں کے لوگوں کو یہ عادت ہے، آرڈر ہے کہ تھوڑی خواتین اندر جانے کے بعد دروازہ بند ہو جاتا، پھر دروازہ نہیں کھلتا. اس کے لیے عورتوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہی اوقات میں تھوڑی دیر کے لیے وہ گیٹ کھلتی ہے پھر بند ہو جاتی. نماز فجر کے بعد، اشراق کے بعد وقت ملتا ہے، نماز ظہر کے بعد، نماز عشاء کے بعد. البتہ نماز عشاء کے بعد بہت دیر تک خواتین کو وہاں پر رہنے کا موقع دیا جاتا ہے. فجر اور ظہر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خواتین کو وہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو جس وقت ہم مواد شریف کے قریب جانے کا موقع ملیں گا تو وہاں پر یہاں اتنا تک لکھا ہے کہ ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ سب کو خیال غیر سے پاک رکھے. کسی سوا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا خیال نہ ہو. بالکل اپنے دل و دماغ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری تصور یہ کر کے رہیے کہ میرے آقا تشریف فرما ہے، میرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت کسی امتی کو نہیں ملی. جو آقا کی امتیوں کو یہ نعمت حاضری کی نصیب ہوئی، پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے جو وعدے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور دیگر علماء کا یہ کہنا ہے کہ ایسا مواد شریف کے پاس جب جائیں گے تو ایسا کھڑے ہونا جیسا کہ نماز میں کھڑے ہیں، بادب پوری توجہ، کیونکہ سرکار کی توجہ ہماری طرف ہے. ہم نہیں توجہ کرتے، پوری توجہ صرف سرکار کے طرف. کوئی دنیا کا کسی کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، خیال نہیں آنا چاہیے. تو یہاں تک لکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح پڑھی کہ جس میں سے ایک نماز بھی فوت نہ ہو، یعنی 40 نمازیں با جماعت پڑھنا ہے، ایک نماز بھی فوت نہ ہو، تو پھر اس کے لیے آگ سے آگے اور جہنم کے عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے. تو لہذا جہنم کے عذاب سے اور آگ سے ہر گناہ سے نجات لکھ دی جاتی ہے. تو جہاں تک ہو سکے 8 دن رہنے کا موقع اسی لیے ملتا ہے عام طور پر کہ 8 دن میں 40 نمازیں ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا 40 نمازیں ضرور پڑھیے اس طریقے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے وصال کے بعد مجھ سے میری زیارت کی، گویا اس سے میری زندگی میں زیارت کی. تو لہٰذا وہاں پر صلاۃ و سلام زیادہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کثرت سے سلام پڑھیے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں. جتنے بار آپ سلام عرض کریں گے سلام کا جواب ملتے رہتا ہے. اور دوسری عبادت کریں گے تو ثواب ملتا ہے. اگر آپ اس مقام پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں گے یا نماز پڑھیں گے تو ثواب تو ضرور ملتا ہے، مگر وہاں پر زیادہ تر صلاۃ و سلام عرض کریے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اگر لوگ آپ کو جاتے وقت کے بولے ہیں کہ لوگوں کو کہ یہ بولے اگر کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا سلام عرض کرنا ہے، تو آپ کتوں کے نام یاد رکھیں گے؟ جس کے نام یاد ہیں، جو قریبی رشتے لوگ ہیں، ان کا تو نام سے سلام عرض کرنا ہے ضرور. مگر جس کے نام یاد نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے کہا ہے، تو آپ اتنا عرض کریے وہاں پر جا کر کہ یا رسول اللہ، جتنے لوگ مجھے آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے کہے ہیں ان سب کی طرف سے آپ سب کا سلام قبول فرمائیے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں حتیم ہے. بازو حتیم کی بھی بڑی تفصیل ہے.
اور وہاں حتیم میں کعبۃ اللہ کے اوپر ایک پرنالا ہے، سونے کا پرنالا، جو حتیم میں ہے۔ وہ پرنالا حتیم کے حصے میں سے نظر آتا ہے، باہر سے بھی نظر آتا۔ تو اس کے بارے میں ایک کیا اچھا شعر کسی نے لکھا ہے کہ میرا دل عرض کرنے کو چاہتا ہے کہ وہ پرنالا ایسا بتا رہا، گویا کہ ہاتھ کی شکل کا پرنالا ہے۔ ایک نعتیہ کلام میں کا شعر ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو طواف زیارت کے بعد جب کعبۃ اللہ پہ نگاہ پڑتی ہے تو پرنالا نظر آتا ہے، جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرف اشارہ بتا رہا ہے جس طرف شہر مدینہ ہے۔ تب ادھر حج ہونے کے بعد اب ادھر اشارہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ بتایا جا رہا ہے کہ اب ادھر جائیے آپ، وہ خاص اللہ کے حبیب پاک کا شہر ہے۔ اور بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کیا حاضری ارکان حج میں شامل ہے؟ اگر ارکان حج میں شامل نہ بھی ہو تو کون ایسا مسلمان ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تک جانے کے بعد دربار میں حاضر نہ ہو؟ جس کو محبت ہوتی ہے آقا سے، وہ تڑپتے ہیں اس لیے ضرور جانا ہے مدینہ شریف کو، اور جتنا ہو سکے جب تک شہر مدینہ میں رہے، پاک کی صفائی کا بہت خیال رکھیے، ادب کا بہت خیال رکھیے، اپن پورا بہت ہر وقت۔ ہاں، اور اصل بات یہ ہے جب بھی دونوں حرمین میں داخل ہوں گے، داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ اعتکاف کی نیت ان الفاظ میں ایسا کریے کہ یا اللہ جب تک میں یہاں حرم پاک میں رہوں میرا اعتکاف ہے۔ بس نیت کرنے کے بعد وہاں پر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ کوئی اگر بہت اہم کوئی بات، کوئی تکلیف ہے، کچھ بول رہے ہیں کدھر ہے کدھر جانا ہے تو ایسا بول سکتے ہیں، مگر اس کے سوا کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ اور جب تک رہے دونوں حرمین شریفین میں جب تک اللہ تعالیٰ موقع دے رہنے کا، جب تک اعتکاف کی نیت کر کر حاضر رہنے کا ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے یہ خاص خیال رکھیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو ڈھکل کر خود آگے بڑھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہم سب کی جو جا رہے ہیں، اللہ ان حاضری کو قبول فرمائے، اور بار بار آقا کے دربار کے قدموں کے میں حاضر ہونا نصیب فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔